First of all, what do you think about the government plus private schools? देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ। बट यही चीज़ें हैं कि आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता अब फिर से गवर्नमेंट स्कूल आ पाएगा। जितना भी चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल को आए, उस चीज़ों को करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए होगी, वो सरकार के पास नहीं होगी। मैं स्कूल्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, वो सही नहीं रहेगा। तो लेकिन बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत पैसा है, बट लैब्स नहीं है वैसी। प्रोग्राम रटवाते हैं कुछ लोग, लिटरली वो सब उसको रट्टा मारे प्रोग्राम में। ओके, यानी कि ये मतलब एग्जाम में आप एक वर्ड चेंज कर दोगे तो उनका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। I've opted for AI from the grade 9 itself. Generative AI is not at all good for the environment. It uses a lot of fresh water. It hurts the aquatic life, hurts the aquatic animals. It hurts generative AI actually hurts a lot of designers as well, who design for a living, who paint for a living. Yes, creativity should be encouraged in more schools because lots of kids can't study, bookish. Lots of kids aren't that argue, but I think creativity should be encouraged more. Yes. So how many times in a month you go to the physics lab? Like about two to three times, like 2 to 3 times in a month. Every morning, 250 million students come to this building. They sit down, open their books and prepare for 8 hours. But prepare for what? They prepare for nothing. And in schools में broken fans, cracked walls या water supply कम आना, ऐसा कुछ भी नहीं है. These are private schools which are taking hefty of the fees to maintain their schools. But the problem is education system. Just imagine how much we have developed in last 100 years. हमारी cars कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हैं, हमारे phones कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं. We used to use the button phones and now we are using the highly technological phone. But think about the education system. जो हमारा education system 150 years ago था, वही same education system आज भी है. आज भी हम लोग computer labs में जाके MS Paint use कर रहे हैं. Computer labs के CPU में 2 से 4 GB RAM है. We are not preparing our future children for the future. We are preparing our future children for the past. So let's go and see how a perfectly designed education system look like and how we are preparing our students not for future but for past. So hi ma'am, Hi. thank you so much for doing this. And what's a good name to be honest? Dr. Sandhya Sareen. Dr. Sandhya Sareen. So my name is Yash. From how many years like you are teaching? Around 15 years. First of all, what do you think about the government plus private schools? Because as you know, private schools fees are like skyrocketing right now, from the courses to the school fees, and nursery KG ki fees is like are in the lakhs right now. So people are not able to afford schools. So matlab, I think government needs to improve the schools. Matlab, what's your opinion? Ki will it's going to happen or not? देखिए, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सी चीज़ें ऐसे जो हम बोल नहीं सकते हैं। बट यही चीज़ें हैं कि आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता अब फिर से गवर्नमेंट स्कूल आ पाएगा। जितना भी चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल को आए, उस चीज़ों को करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए होगी, वो सरकार के पास नहीं होगी। Okay. गवर्नमेंट के जो प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं वो चलने ही नहीं देंगे, वो चीज़ें ही नहीं देंगे। और थोड़ा हमको अपनी सोच में भी बदलना होगा। बीइंग ए पेरेंट्स, हमको क्या चीज़ होती है, जैसे आपने बोले, हम ये बोल सकते हैं कि लाखों की फीस है, ठीक है, हम कहने को माइक पे बोल सकते हैं कि लाखों की फीस है, बहुत गलत है, ये चीज़ें बहुत गलत है। बट इसमें हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। पेरेंट्स का बड़ा योगदान क्या है? हम जब पढ़ते थे तो हमारे समय पे जितने स्कूल थे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सब स्कूल एक जैसे होते थे, एक जैसी बेंचेस होती थी। हमको नहीं चाहिए होता था एसी, हमको पसीने बहाने होते थे। हम स्कूल से आते थे, बगल में बैठते थे तो
स्मेल भी आ जाती थी, बट वो ठीक था, उसके बाद नहा रहे वो चीजें। आज की डेट में क्या है वो बताएगा, अरे मेरा बच्चा वो टोटली एसी है, फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल है। अब अगर आप फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल में भेजोगे तो फिर आपको फीस उतनी देनी पड़ेगी। वो जो फुल्ली एयर कंडीशन स्कूल चला रहा है, जो उसको फिर उस तरह के टीचर्स रखेगा जो वो होगा, तो वो उतनी फीस देनी होगी। हमको बच्चों को बच्चे रहने देना होगा, वो हम नहीं दे पाएंगे, है ना। वो हमारे बच्चे, हम बहुत अच्छा स्कूल खोल दें, हम आपकी बता रहे हैं, हम बहुत अच्छा स्कूल खोल दें और सारी चीजें हम ये सुविधा ना दे, टीचर्स अच्छे दे देंगे, सब कुछ है, एसी भी दे देंगे, उसके बावजूद क्या होगा कि हम नाम वाले स्कूल पे भेजेंगे अपने बच्चों को, वहां पे नहीं भेजेंगे जल्दी, क्योंकि अगर वो बेसिक सुविधा हमारे पास नहीं रही। पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो रही है कि एसी है कि नहीं, तो फिर काम हो गया काम। तो मतलब एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट आजकल के लोग मार्केटिंग एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स को बस यही चीजें हैं, और उसको करने के लिए और हर तरह से पैसे कमाने को जो होड़ मच गई है ना, मतलब एक जो सबसे बड़ा सिस्टम, अगर हम ये चाहते हैं कि आप लोग के थ्रू अगर गवर्नमेंट से ये हो जाए तो सिर्फ एक चीज हो जाए, प्राइवेट स्कूल तो मैंने कहा कि बंद नहीं हो पाएगा, ना सरकारी हो पाएगा, तो ये तो शायद हमारे जीवन में नहीं हो पाए, बात की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये चाहते जो वो काम हो सकता है, वो गवर्नमेंट ये चीज कर दे कि सिर्फ इसी राइटर की बुक, पब्लिकेशन की बुक हर एक स्कूल में चलेगी। वो चाहे वो प्राइवेट राइटर को भी कर दे, लेकिन वो एक करे और उसकी प्राइस फिक्स कर दे। एक बुक जो 1000 रुपीज की क्लास 1 की बुक मिल रही है, उसकी कॉस्टिंग 30 रुपीज होती है। तो मतलब 30 रुपीज से 50 रुपीज वो इसलिए करते हैं कि वो 30 रुपीज तो कॉस्टिंग मेन पेपर प्रिंटिंग मिला के, बाइंडिंग मिला के मैक्सिमम 50 रुपीज होती है, लेकिन वो क्या करता है, उसको उस पब्लिशर को, मान लीजिए हमने ही अपनी बुक लिखी है, हमको क्या होगा कि मेरी बुक आपके स्कूल में चल जाए, तो मैं आपको कमीशन दूंगी। मैंने आपको 100 रुपए कमीशन दिया, 150 रुपए 50 रुपीज की बुक मैंने 200 कर दिया। फिर मैं गई दूसरे के पास, जो बेचेगा मैंने उसको दिया 100 रुपए की जगह, कोई तुमसे अच्छी बुक मांगे तुम बोलना ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने उसको दिया, फिर मैंने बढ़ा दिया 500 रुपए कर दिया, 400 रुपए की जगह 500 रुपए की बुक हो गई। फिर क्या किया, टीचर्स को सैंपल कॉपी नहीं देंगे, टीचर्स अच्छी बुक कहेगा ही नहीं, टीचर्स को वो चीजें दिया, तो कुल मिला के कॉस्ट उसकी 1000 आ गई, है ना। तो ये चीज अगर गवर्नमेंट ये चाहे तो ये रोक सकती है, एक बहुत अच्छी, मतलब जैसे एनसीईआरटी बुक है, उसमें आईसीएसई में भी छोटे क्लास में भी बुक्स चलाए। हम कहते हैं एनसीईआरटी के साथ भी अगर वो एक कोई बता दे कि रेफरेंस बुक में ये आपकी चलेगी और इसकी कॉस्ट बस इतनी होगी, तो मतलब सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट इस चीजों पे कंट्रोल अगर कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। What are the basic issues? What do you think in the education system are? मतलब आपको ऐसा लगता है ये बहुत ही ऐसी बेसिक चीज है जो इम्प्रूव हो ही जानी चाहिए? बेसिक चीज इम्प्रूव होने के लिए मतलब क्या है कि जैसे जो एग्जाम्स हमारा होता जा रहा है, वो टोटल परसेंटेज पे जा रहा है। जैसे कि हम 11-12 परसेंटेज में एक समय था, मतलब आप उसके कॉन्सेप्ट पे जाइए, जो आप परसेंटेज का होड़ करते जा रहे हैं अननेसेसरली, वो चीजें मुझे लगता है बंद होनी चाहिए। 90% वाला बच्चा जो होता है वो 90% लगना चाहिए। आज की डेट में होता क्या है कि एग्जाम में बच्चों का रहता है 90%, 10th में है 90% आया, 95% आया, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे वो स्केलिंग करते हैं, क्या करते हैं नहीं मुझे पता, बट ये नहीं होना चाहिए। 90% वाले बच्चे को 90% होना चाहिए, है ना, परसेंटेज की चीजें होनी चाहिए। तो बेसिकली मेरे को जो समझ में आ रहा है कि वो रट ज्यादा तरीके से लेके परसेंटेज लाने के लिए, अब वो रट रहे हैं कि कुछ पेपर पे भी, मतलब नहीं, अभी तो खैर 2-3 सालों से चेंज हुआ है, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस जा रहे हैं, बट वो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस जा रहे हैं और बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि स्कूल में वैसा नहीं पढ़ाया जा रहा है जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट क्वेश्चन भी वैसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सिलेबस को, कि हम उस टाइप के क्वेश्चंस दें, उस टाइप के दें। और थोड़ा सा मुझको ऐसा लगता है कि परसेंटेज होड़ कम होनी चाहिए, परसेंटेज थोड़ा सा, हाँ मतलब कम होनी चाहिए। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परसेंटेज के ऊपर जाते हैं। मतलब वही है कि अगर किसी के बच्चे का 80% आ गया है, 80% इज नॉट बैड परसेंटेज, बट
वो पेरेंट्स भी ऐसे बोलेंगे, अरे अच्छा नहीं रहा, 80% हो गया, बच्चा तो रोएगा, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब वो टू दी पॉइंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो आंसर्स आ रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हम लोग मतलब ट्राई कर रहे थे कंपेयर करने का इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से एज कम्पेयर टू बाहर के एजुकेशन। हाँ, मैं इस चीजों में कहूंगी कि देखिए, मैंने बहुत ज्यादा बाहर जाके पढ़ाई नहीं की है, बट मैं जूनियर लेवल पे मैंने मैथ्स की बुक्स देखी हैं, मैंने एक आध क्लासेस भी लिए हैं, कनाडा यूएस वाला चीजें जो, तो वहाँ की जो बुक्स देखी है, वहाँ की बुक्स और यहाँ की बुक्स में बहुत अंतर है। बहुत अच्छा यहाँ की जो चल रही है बुक्स, हम उसको अच्छा ही कहेंगे। अच्छा इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी हमने देखा कि एक लखनऊ में बहुत बड़ा स्कूल है CMS सिटी मॉन्टेसरी, उन्होंने वहां पर बुक चला दी, एक जंप बुक करके मैथ्स की। ठीक, अब जंप बुक में कुछ नहीं है, 6th 7th 8th में आपने चला दी जंप बुक, और जिसमें कुछ भी नहीं है, जो बच्चे हमेशा हम पिछले 15 सालों से 20 सालों से जो पढ़ा रहे थे। अब वो ये हुआ कि वो कनाडा की बुक है, कनाडा का सिस्टम है, हम कहते हैं ठीक है कनाडा की बुक है, तो कनाडा का सिस्टम आप 10th में नहीं कर पाओगे। वो बच्चा जाके 9th में जब ML अग्रवाल पढ़ेगा, उसको कुछ नहीं आएगा। So basically 6th 7th 8th में डिफरेंट बुक नहीं, आप हाँ 6th 7th 8th में उन्होंने जंप चला दी कनाडा की बुक। कनाडा वाले को IIT का एग्जाम नहीं देना है, कनाडा वाले को रिजर्वेशन से फाइट नहीं करना है। तो जो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारी ये आपने 3 साल के लिए बुक चेंज कर दी, और आप सोचिए आप एजुकेशन चेंज कर देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये तो CMS अपना इतना बड़ा स्कूल अपनी को डाउन कर रहा है। अब तो आज मैंने ये सोचा कि मैं अगर कोई CMS का बच्चा आएगा और मुझे उसमें 9th में एडमिशन लेना पड़ेगा, मैं पहले उसका प्री टेस्ट लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं 9th की ML अग्रवाल या कोई चीज मैं उसे पढ़ा ही नहीं पाऊंगी। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इतना अच्छा चीजें जो हम लोग 8th में पढ़ाते हैं, है? और उन्होंने क्या किया, 2 into 2 into 2 4 बार कर दिया, 2 into 2 3 बार, उसका स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर रूट, काम खत्म उनका। तो ये नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको 9th यहाँ नहीं पढ़ना है, उनको ICSE CBSE 11th 12th यहाँ इंडिया में देना है। कनाडा की बुक नहीं चल पाएगी वहां पर। तो ये एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। ये CMS ने बहुत बड़ा इशू किया है, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल ने किया है। और लखनऊ में CMS की नहीं होगी तो कम से कम 20 ब्रांच होंगी। हाँ, लखनऊ में तो CMS इज वेरी बिग ब्रांच, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर आल्सो। लेकिन वो बहुत ज्यादा खराब चीज की इन्होंने। बट आपको ऐसा लगता है कि CMS ने एटलीस्ट वो स्टेप लिया फॉर 3 क्लास का नहीं करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ CMS स्कूल को इन पर्टिकुलर नहीं करने के बजाय? बिल्कुल अच्छा स्टेप नहीं लिया। इसलिए अच्छा स्टेप नहीं लिया क्योंकि जो वो चल रहा था, उन्होंने और चीजों में करते, जो रटने वाले सब्जेक्ट्स थे या कुछ उसमें चेंज करते तो मैं समझ सकती थी। जो लॉजिकल थिंकिंग, जो बच्चे का माइंड आपका शार्प, हम लोग पढ़ते क्यों है, IAS के लिए इतना सिलेबस क्यों होता है, या IITians के लिए क्यों, वो जो पढ़ रहे होते हैं मैथ्स के सम्स कर रहे होते हैं, वो उनको काम नहीं आती है। क्या होता है, जब हम इतनी चीजें पढ़ते हैं तो हमारी माइंड शार्प होता है, वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, शार्पनेस बढ़ती है, हम कितनी जल्दी कौन सी चीज कर सकते हैं। इसलिए उनको इतना चीज पढ़ाया जाता है, वो किया जाता है कि वो कितनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स करेंगे, जब उनके ऊपर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो करेंगे। तो पढ़ाई, जिसको कहते हैं ना, एक छुरी में धार जितनी दी जाएगी उतना ही अच्छा होता है। प्लेन आप नाइफ लेके ऐसे करिए, कुछ नहीं, जब तक उसको धार, तो कि पढ़ाई जो है वो धार है। और आज की डेट में हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रही हूँ, इतने बच्चों को देख रही हूँ, एक्स्ट्रा एनर्जी है उनके पास। आप उनका सिलेबस कम कर दीजिएगा, आप सोचिएगा वो बाहर जाके खेलेंगे, आप सोचिएगा वो बाहर जाके कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो इंस्टा पे बैठेंगे। इतना सिलेबस होने के बाद, इतना पढ़ाई प्रेशर होने के बाद भी तो 3 घंटा वो इंस्टा पे रहते हैं। बट आजकल मतलब आपको मैं टोटल पॉइंट एग्री कर रहा हूँ कि शार्पनेस एंड एवरीथिंग इंक्रीज करनी चाहिए, बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं शायद से जो मतलब स्टडीज में डेफिनेटली इतने अच्छे नहीं है, बट उनको जबरदस्ती स्टडीज के अंदर डाला जाता है, जबरदस्ती मैथ के क्वेश्चंस कराए जाते हैं। मैं ये मानती हूँ, वो नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो मैंने शुरू में बोला कि परसेंटेज वाला, जैसे ही उनका बच्चा 10th में रहा, 10th का सिलेबस 11th का सिलेबस बहुत वास्ट डिफरेंस है। ठीक है, 10th में 90% आ गया, 92% आ गया। अब 92 और 90% में भी कहानी है, मैथ्स में उसके 40 और 46 हैं। उन्होंने एक पीरियड ले लिया, एक वो ले लिया, 100 मार्क्स देके परसेंटेज आ गया। अब उन्होंने तो बता दिया कि मेरा बच्चा 90% आ रहा है,
अब 90% होने के बाद तो फिर क्या बचता है, साइंस बचेगी। अब आपने 11th में बच्चों को साइंस दे दिया, जबकि वो साइंस पढ़ने लायक उसकी स्थिति नहीं थी। 11th की साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना इतना आसान नहीं है। तो ये पेरेंट्स बच्चे को फोर्स करते हैं 90% के बाद साइंस लेने के लिए, या फिर बच्चा खुद जाता है? पेरेंट्स फोर्स करते भी हैं और बच्चा भी जाता है, वो आगे सोच के कि हमको क्या करना है, कहीं कुछ साइंस पढ़ेंगे तो कुछ चीजें मिल जाएंगी कोर्स में हमको। अब हम ये भी कहते हैं कि अगर वो चाह रहा है, जा रहा है, तो उसको जाने दें, पढ़ेगा, थोड़ी बुद्धि खिलेगी उसकी, पढ़ाई का प्रेशर कम हो जाएगा तो वो और इधर उधर चीजों में जाएगा, मेरा तो ये मानना है। लेकिन उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि 90% और 99% का। बट अपने मन से वो पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने देना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स उसको ये समझाने लगते हैं ना कि बेटा तुमने जरा सी मेहनत की, तुम्हारे इतने अच्छे आ गए, तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे तो तुम्हारे हो जाएंगे। और बस एक चीज ये भी है कि जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो अगर ये रिजर्वेशन हट जाए तो 99% जो है इंडिया का, जो जिसको कहते हैं ना कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, अमेरिकन के पास बिल्कुल बुद्धि नहीं जितनी इंडियन के पास बुद्धि है। लेकिन ये सारे के सारा सिस्टम बना के रखा हुआ है एजुकेशन, ये रिजर्वेशन के लिए। अब आप खुद सोच लीजिए, एक लड़का जो, अगर हम डॉक्टरी की बात करें, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए, कोई फील्ड होनी चाहिए जहां पे आप रिजर्वेशन मत करिए। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2-3 फील्ड में आपको रिजर्वेशन नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप ये सोच लीजिए कि एक बच्चा जो है 30 मार्क्स लेके भी आ रहा है और रिजर्वेशन क्लास का है, उसको मिल गया मेडिकल में एडमिशन, और एक जो 99% भी है उसको भी नहीं मिला क्योंकि वो रिजर्वेशन उसके नहीं मिल रहा है। वो कितना अच्छा डॉक्टर बनेगा। बट यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो मतलब क्वेश्चंस लोगों के उठते हैं कि जो 30 नंबर ला रहा है, जिसको रिजर्वेशन है उसके पास, वो एक इतनी प्रिविलेज जगह से नहीं आ रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है। प्रिविलेज जगह वाला आज की डेट में जो रिजर्वेशन जिसको मिल रहा है 30 वगैरह, प्रिविलेज वाली कहीं कोई कहानी नहीं होती। हर जगह प्रिविलेज है, और जिसको एक्चुअल में जरूरत है वो आज भी वहीं बैठा हुआ है। वो आज भी वहीं बैठा है। सारे आप क्या सोच रहे हैं, जो आईएएस के बच्चे हैं, जो या डॉक्टर जो खुद बन चुका है, उस बच्चे को कहाँ की प्रिविलेज की कमी है, लेकिन उसको रिजर्वेशन मिल रहा है। हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, वो उनको चीजें कही हैं, हम आपको नाम नहीं ले सकते। एक आईएएस की बात की हम बात बताएं, माँ बाप दोनों आईएएस हैं, दोनों रिजर्वेशन पे हैं, है ना, रिजर्व कोटे के आईएएस हैं। अब उन्होंने अपने बच्चे के लिए ये चीज मुझसे बोला कि अरे मुझे तो कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं, उसका बच्चा पढ़ रहा था, बस लास्ट मोमेंट में उन्होंने 1.5 लाख रुपए महीना हमको 1.5 लाख रुपए हमको दिया टीचर्स को भेज के कि वो पास हो जाएं, पास करा दीजिए, हमको ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, हमको बस जस्ट पास करना है, बाकी तो सब मेरा हो जाएगा। I agree with you, some of the parents and some of the people, some of the नहीं, 99%, but जो जिनको जो ये बन रहे हैं वो 99% उसी तरह से बन रहे हैं। पढ़ने वाला जो जिनको उतनी सुविधा नहीं मिल रही है वो बन जा रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत। मैंने जैसे कि आपको एक लास्ट वाला वीडियो मैंने आर्टिस्ट के ऊपर जो बनाया था, मैं बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट एंड एवरीवन मिलता हूँ जो लिटरली बहुत ही अंडर प्रिविलेज जगह से आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिसयूज बहुत ज्यादा लोग इस चीज का कर रहे हैं रिजर्वेशन का। आई एग्री विद यू कंप्लीटली ऑन दैट कि आईएएस एंड लॉट ऑफ द पीपल आर मिसयूजिंग इट, बट मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे रियल लोग हैं जिनको रियलिटी में नीड है। तो मुझे ये लगता है कि रियलिटी में नीड है, आप उनको रिजर्वेशन, आप उसमें क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो? आप उनको नीड है, आप उनको अलग से पढ़ाओ ना, आप उनको अलग से पढ़ाओ। जो ये रिजर्वेशन मांग रहे हैं बच्चे, जो आप फॉर्म भरवा रहे हो, उनको आप पहले भरवाओ, एक साल उनको पढ़ाओ। बैक टू कमिंग टू द एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा बात हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 90% के बाद साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वो इधर उधर चीजें और नहीं देखते हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि जो मतलब 10th में बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है वो इस वजह से केवल साइंस या फिर कोई फील्ड सेलेक्ट कर रहा है बिकॉज उसे बहुत सारी करियर फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं है? हाँ, ये तो है, बहुत सारी चीजें उसको करियर फील्ड के बारे में पता नहीं है। और दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी जो हमको समझ में आई है ये प्रॉब्लम पे, मैं आपको बताऊं, हम उस तरीके वाली चीजों पे नहीं जाते, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है कि वो बच्चा आराम से पढ़ सकता है, ऐसा भी बुरा नहीं पड़ेगा 11th में उसने साइंस ले लिया। दिक्कत आ रही है वो उनके माँ बाप जब उनको LN में डाल दे रहे हैं, उनके
एलएन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी और नीट के लिए, ओके ठीक है। उन्होंने 11th में डाल दिया, अब वो 11th में वहां पर उनको डाल दे रहे हैं, वो वहां ना डाल के अगर वो जैसे हम लोग जैसी छोटी कोचिंग पे करे या वैसे पढ़ाए या केवल स्कूल में बच्चों को पढ़ने दे, वो बहुत अच्छा करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि एलएन में उन्होंने डाल दिया। एलएन वालों का क्या है, उनका एक पूरा एक सेट सिलेबस है। आज के दिन ये लेक्चर 1 में मुझे ये चीज पढ़ानी है, लेक्चर 2 में मुझे ये पढ़ानी है। मैं समझ में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो। बच्चे को ए नहीं समझ में आया, बी नहीं समझ में आया, आपने सीएटी कैट पढ़ा दिया। आई एग्री मतलब विद यू टू बी ऑनेस्ट इसके अंदर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो स्टूडेंट है जो 90% मार्क्स ला रहा है, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं क्लास 10th में मेरे 92% आए थे। मैंने क्लास 12th 11th में साइंस सेलेक्ट करी एंड मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि इतने अच्छे मार्क्स आए, साइंस सेलेक्ट करो। मैंने करा सेलेक्ट, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया साइंस एंड एवरीथिंग, एंड मैंने किसी तरीके से वो पढ़ाई करी। बट एट द एंड ऑफ द डे आके मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम वेरी क्रिएटिव पर्सन, कि मेरे को क्रिएटिविटी पसंद है। मेरे पास लैपटॉप था, सो मैंने रीच आउट किया, मैंने किसी तरीके से फिगर आउट किया, ठीक है, वो तो मैं क्रिएटिव डायरेक्टर बन पाया। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इंडिया के जिनको अंदर पता नहीं है फील्ड के बाद। ये तो मैं ये चीजों को बहुत वो करी हूँ, और मैंने मतलब ये चीज सोचा भी है कि मैं एक मतलब शायद नेक्स्ट ईयर से मैं ये कर दूं कि मैं 11th में एडमिशन्स लेने से पहले या कोई भी चीजें मैं किसी को बहुत ज्यादा मुझे भी नहीं आइडिया है शायद, तो मैं जैसे आप जैसे लोगों को वो चीजें करके कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकता है। हाँ, तो ये मेरा पॉइंट काफी ज्यादा बड़ा, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है इंडिया के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, मैक्सिमम पायलट या फिर आर्किटेक्ट, टोटल 15 या 20 मैक्सिमम करियर ऑप्शन के बारे में पता होता है। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर लाइक 12,000 प्लस करियर ऑप्शंस, लाइक हनी कीपर, एयर होस्टेस, हेलीकॉप्टर पायलट। अभी भी है, बट पता ही नहीं है। नहीं पता भी है, हनी कीपिंग तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन हनी कीपिंग इतना आसान नहीं है। Actually, honey keeping is quite easy than doing engineering, to be honest. नहीं, quite easy तो नहीं है। अब मैंने भी, मुझे जो एक उसके बारे में पता चला कि उसमें भी देखो क्या चीजें, जैसे जैसा मुझे पता चला कि एक थे हमारे पास आए और उन्होंने वो चीजें की डॉक्टर, तो उनका क्या था कि वो यूकेलिप्टस हनी अलग था, ठीक है, और अनियन हनी, मतलब इतने टाइप के हनी, और इसके लिए ये फायदा ये। तो अगर वो हनी कीपिंग और हनी निकालने की वो चीजें कर रहा है, तो आप ये सोचिए यूकेलिप्टस की, अगर यूकेलिप्टस हनी वो निकाल रहे हैं, तो पता नहीं कितने एकड़ एरिया में केवल यूकेलिप्टस के पेड़ होने चाहिए थे। हाँ, मतलब आई एग्री विद यू, बट आप ये सोचो कि मतलब अगर आप 10 लाख इंजीनियर्स निकल रहे हैं, तो उसमें से लिटरली 10,000 एम्प्लॉयबल है, आपको भी पता है उसके। नहीं वो ठीक है, तो बट हनी कीपर में अगर 10,000 भी जाएंगे तो उसमें से एटलीस्ट 5,000 एम्प्लॉयबल बन पाएंगे। नहीं वो ठीक, वो हम मानते हैं, उस चीजों को हम मानते हैं, लेकिन बस वही चीज है ना कि ऐसे जो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने इतना पैसा लगा के उनको इंजीनियरिंग बनाएंगे, तुरंत ही उनको 3 लाख ही भले ईयरली हो पैकेज मिल जाएगा, बट वही तो मिल नहीं रहा है। नहीं, एक ये सोच के तो जा ही रहे हैं ना, मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो तो फिर नहीं, ये तो बहुत सही चीज है। मैं इस चीजों को मानती हूँ कि कैरियर ऑप्शंस पता नहीं होता है हमको, और इवन छोटे शहर वालों को तो और नहीं पता होता है ना। बड़े शहरों में तो फिर भी लोगों को बहुत सी चीजें पता होती हैं, दिल्ली है या यहाँ पर है, बट यहाँ पे नहीं पता होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि करियर काउंसलिंग इंडिया के अंदर काफी ज्यादा लेवल पे मिसिंग है। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाइक एटलीस्ट क्लास 10th के अंदर पर स्टूडेंट अगर एक करियर काउंसलर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने यूएस एंड इंडिया को कंपेयर किया, तो डेफिनेटली वी आर मच स्मार्टर देन देम इन द आईआईटी इन लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई गेस इन समथिंग लाइक करियर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, दे आर डूइंग समथिंग गुड, दैट्स व्हाई देयर मतलब पीपल आर एटलीस्ट नॉट डूइंग द मतलब I don't want to use this word suicide or anything because lot of people are doing this। यहाँ के अंदर अगर किसी के ऊपर प्रेशर आता है, टोटल इट्स नॉट ओनली कि पढ़ाई प्रेशर से सुसाइड कर रहा है, दैट इज मेनी अदर थिंग्स, बट आई गेस करियर काउंसलिंग एक होना चाहिए। नहीं, कैरियर काउंसलिंग तो बहुत जरूरी होती है। मैं खुद कहती हूँ, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आते हैं, बहुत वो कहते हैं, मैं उनको बिल्कुल मना करती हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत कीजिए उनको, उसको करने दीजिए। बट प्रॉब्लम है आप बोल देते हो, बट तब भी वो घर पे जाके उस बच्चे को लिटरली वही सेम चीज बोलते हैं कि इतना पैसा लगाया है। जब मतलब आप खुद ही सोचो, आपके कोचिंग सेंटर में कोई भेज रहा है 4-5 लाख दे रहा है, या कोटा कोई भेज रहा है, एक पर्टिकुलर सिटी कोई भेज रहा है इतना पैसा लगा के, तो स्टूडेंट को अंदर इतना गिल्ट प्रोवाइड कर देते हैं इंडियन पेरेंट्स कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगाया, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो तुम्हारी लाइफ क्या बचेगी। बिल्कुल, अभी मैंने तो मना किया परसों, एक बच्चा है जिसको 10th पास होना मुश्किल है, 9th पास,
लेकिन उनके पेरेंट्स को है कि साइंस ही पढ़ेगा। तो वही तो प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कुछ कुछ स्मॉल चेंजेस होने चाहिए, लाइक करियर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई एम डिसलेक्सिक एंड ये मुझे 1 साल पहले जाके पता लगा, लिटरली 1 ईयर अगो। मैंने अपनी लाइफ के 16 साल स्कूल एंड कॉलेजेस में निकाला। मैं पढ़ नहीं पाता था चीजें बहुत अच्छे से, मैं इतने अच्छे से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाता था। एंड किसी ने मेरे से आज तक नहीं बोला कि साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाओ। आई केम बैक टू इंडिया, आई हैव गॉन टू साइकाइट्रिस्ट एंड मैंने डायग्नोसिस कराया एंड देन आई फिगर आउट कि मैं डिसलेक्सिक हूं। अब इसको तुमने अपने आप पे देखा, तुमने अपने आप पे ये कर दिया। जब अगर तुम्हारे पेरेंट्स को बचपन में कोई बता भी देता, वो भी करता ना, तो अगर जो बताता ना, उसको कहते तुम पागल हो, बेवकूफ हो, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, अभी देखो ये पढ़ लेगा, अभी देखो ये कर लेगा। हाँ। वो एक जो ना एक हमारा वो थोड़ा सिस्टम तो है। सितारे ज़मीन पर आपने मूवी देखी होगी डिसलेक्सिया के बारे में? नहीं, वो तो है, वही मैं कह रही हूँ कि वो चीजें हैं, लेकिन वो सिस्टम तो चेंज करना। कैरियर काउंसलिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जेन्युइन वाली ऑफ कोर्स, नॉट मतलब कोई भी आके। हाँ, बस कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझको लगता है आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम पे होने के बाद, मतलब ये जो प्राइवेटाइजेशन हो जाने की वजह से ना इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चों की हेल्थ इसलिए ही नहीं हो पा रही है। मतलब हम जो थे तो आज छोटी छोटी सी जगह पे उन्होंने इतने बच्चे भर के स्कूल्स खोल लिए। स्पोर्ट्स का कोई पीरियड ही नहीं होता, पीटी कुछ होती ही नहीं है। हम लोगों को याद है, हम लोग जब छोटे छोटे थे, जिस भी स्कूल में 1 घंटे आधे घंटे की वो पीटी धूप में होती थी। तो डू यू गाइस फील कि क्या कहते हैं स्कूल्स के अंदर मेंटल मतलब डिसऑर्डर्स या फिर साइकाइट्रिस्ट होना चाहिए फॉर द स्टूडेंट्स? एनीबॉडी हैव एनी आंसर्स फॉर इट? होना चाहिए। I think most schools have psychologists, but आलिया बोलो। Most schools have psychologists already. Love, can you name some? mine does. The rector, we have a school counselor. She is a psychologist. Okay. So kids, whenever they have any problem, they go to her. Which school do you go? The rector. Okay. So Okay. Most of the schools but don't have that, and right? I think it's good that they do. And they should. They Because should. lots of people don't have anybody to talk to. Okay. So I think It's fine. they should. And what do you think about the computer right now? So as AI is going very far right now, do you think what the computer you are studying in the schools is good enough to compete with the AI? Well, what we study at school is very basic. And I think generative AI, for the general public, I don't think it's that good. Not generative is AI if we talk about ChatGPT or Claude. What Claude is doing right now. So what do you think about that? The AI, the coding is done like Claude right now. Many of the engineers and AI engineers and the programmers are losing their jobs. Yes. So right now what you're studying in the school, the computers and anything, you think that needs to be changed? Well, I mean, I don't study computer, but I don't think it's enough. And I think, yes, it does. It should change. So what do you study as it? And You have economics. Nice. I think generally just creativity should be, The part of it. yes, creativity should be encouraged in most schools, because lots of kids can't study, bookish. Lots of kids aren't that aage. But I think creativity should be encouraged more in schools. You guys have all books of 200 pages right now with the equations. Do you think you are going to use these equations in your life? What do you think? Well, I think that there should be more practical ways to study, because like generally teachers in CMS, I'm a CMS student. So basically the general way of teaching is that they come to the class, they teach you. But I think there should be more practical ways, like experiments, plus more creative, as Alia said. So I think that's a better way, and students can focus more. They can grasp more, Practical. practical. So basically, I guess you are studying mathematics right now, and I guess you study physics as well. Yes. So I guess in physics there is physics lab in your school. Yeah. There's So how many times in a month you go to the physics lab? like about 2 to 3 times, like. 2 to 3 times in a month. Like there are rarely any classes. Like teachers are basically focused on completing the course. So, yeah. Okay. That's, Basically, when it's the practicals are near, like that's the only time we go to the lab. so just one thing.
So you are studying, I guess, PCM right now. Yeah. So do you want to study PCM or it's just a parent thing? No, like I want to study PCM. What do you want to be? Like I was thinking maybe I could opt for IP Math. I was thinking of IP Math, of giving IP Math. So I think studying mathematics and these subjects will build my mental aptitude. So that. Okay, really nice. So do you want more practicals of chemistry as well and physics as well? Sure. I think that would be better for students. Anybody here wants to be matlab, in the creative field but they are studying maths or anything? Just for sake of it? Koi hai? Architecture. You want to study architecture? Architecture, basically, I want to go in interior designing more, but going to architecture will like give me more options of field in architecture. Like not only it will give keep me confined to interior designing. So Okay. But you are studying maths right now. yeah. So did your parents pressure? Not exactly, but they advised me to go for mathematics as it will open many fields for me in architecture. Okay. Not So nice, keep but- me confined to interior designing. Okay. Matlab, do you, because I have done one video on architect, to be honest. Indian architect is very bad. We don't have consistency at all. We just put whatever we want right now. And whatever the Mistri, I guess, said to them, there's nobody wants to hire the architect. So that's a very big gap in the industry. I guess if you want to pursue, you can do a lot with it. Yeah, I Because- researched for it and I I'll do my bachelor's from here and for master's I'll go to foreign only. Because but I want to advise you one thing. Indian old architecture is very, very good. Yeah. I've studied it, and I want you, if you are going foreign as well, to design in such ways, because there are very less buildings like that right now, except of Taj in Udaipur. Yeah. Well, I wanted to talk about generative AI. Oh, really nice. I've opted for AI from the grade 9 itself. Generative AI is not at all good for the environment. It uses a lot of fresh water. It hurts the aquatic life, hurts the aquatic animals. It hurts generative AI actually hurts a lot of designers as well, who design for a living, who paint for a living. So as I've opted for AI, I also have a passion for designing. I use Canva a lot. Oh. So AI, yeah, it does hinder creativity to some extent. It also takes a lot of jobs, makes people unemployed a lot. I have some friends who are trying to get into designing, and now like AI has taken over. So they're not that apt into getting into designing now because AI is replacing everything. Yeah. And especially a few weeks back, ChatGPT came up with an update, Yeah. and I saw a lot of IPL posters being made with that. Yeah. So a lot of IPL franchises editors, I know some of them, they were also not very keen on using AI as, you know, it hurts their environment basically. Art is equal to AI or not? Not entirely. Actually, AI is supposed to make our lives easier, not basically replace everything that we have, not our cognitive abilities, not our creativity. So if people with disabilities are able to make art, then that's a good thing, but it should not replace human artists Yeah, or sure. designers. Yeah. And I guess I agree with you at this point. And with the time, the human artists are going to be much more valuable, because AI, I guess everyone in this room can use AI, a simple prompt, but a person who can make a good art will be more valuable. I guess you can agree with 100%. this. 100%. So I guess if you want to pursue the design and everything, instead of just a mathematic equation, because AI can only understand things mathematically, it can't able to think critically in a critical way. So to your friends, if you talk to them, ask them to think critically and design in the way like AI can't able to design. Because Absolutely. that's a very best part, because I am in the creative space for like 7 years, and this is the best way I have survived till right now. So yeah, that's a good part. Achha, one more thing, like, ऐसा है क्या girls and boys are separated right now? ठीक है. Okay. Okay. Okay, guys. Thank you so much. Thank you so much, guys. Okay, so you are teaching like computer applications, I guess. Computer application and computer science. Okay, IC. from how many years approx? Approx 20 years. 20 years, quite a lot to be honest, because I was like not even born, I guess. I'm 21 right now. Okay. But yeah.
So I want to know about the literally computer problems in India, because I know there are like lakhs of problems and the AI is taking jobs and everything. But I guess computer is the subject for the students. It's very must right now, but we are not teaching them right. So मतलब what's your opinion and what's the situation right now? सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रैक्टिकल बेस बहुत ज्यादा होना चाहिए. इवन कंप्यूटर्स क्या, बाकी साइंस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होना चाहिए. हाँ. मैं स्कूल्स का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे. वो सही नहीं रहेगा. तो लेकिन बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं. बहुत पैसा है, बट लैब्स नहीं है वैसी. लैब्स नहीं है. IIT क्यों है? कभी किसी ने पूछा? Why IITs? हर आदमी तैयारी कर रहा है इंजीनियरिंग की, IIT जाना चाह रहा है because of their labs. 24 आवर्स उनकी लैब ओपन रहती है. मैं IIT कानपुर की बात कर रहा हूँ और उनके कंप्यूटर्स लैब की बात कर रहा हूँ. 24 आवर्स बच्चों के लिए लैब ओपन रहती है. एक बार मैं IIT गुवाहाटी गया था. वहाँ पर उनकी लाइब्रेरी 1:30 PM तक ऑन है. उनके पास दुनिया के जहां के भी रिसर्च वर्क है वो रखे हुए हैं. स्टूडेंट रीड करेगा, फोटोकॉपी निकालेगा, प्रॉपर सिक्योरिटी है वहाँ पे. उसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है. तो इसीलिए IITs हैं. और अब जैसे क्लास 6 के बच्चे को एक मैंने कल पढ़ाया, तो अब वो ही स्टडिंग थ्योरी ओनली. अब थ्योरी कंप्यूटर की हिस्ट्री से एक बच्चे को क्या फायदा होगा? हाँ, मतलब अबैकस पढ़ा रहे हैं. अबैकस के बारे में बता रहे हैं. अबैकस प्रैक्टिकल हो तो कुछ फायदा होगा, लेकिन अबैकस की थ्योरी से क्या फायदा होगा बच्चे को? कोई फायदा नहीं होगा. उसको क्लास 5th से कम स्क्रैच, पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल कोडिंग कर सकता है बच्चा. और AI का प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाना चाहिए, ताकि उसको समझ में तो आए हो क्या रहा है. एक्चुअली इस वक्त कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सब AI कर रहा है. लेकिन कभी फ्यूचर में सिस्टम क्रैश होता है. पूरा सिस्टम क्रैश. इसे बनाया कौन? अगर प्रोग्रामिंग ही नहीं आती होगी बच्चे या स्टूडेंट को, प्रोग्रामिंग सीखना बहुत जरूरी है. लेकिन प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए. प्रोग्राम रटवाते हैं कुछ लोग, प्रोग्राम रटवाते हैं. सोचिए, मेरे पास अभी बच्चे आए हैं, कुछ लास्ट ईयर नहीं थे मेरे पास, वो कहीं से सुन के आए मेरे पास, तो पढ़ रहे थे. तो मैंने उनको पूछा, तो लिटरली वो सब उसको रट्टा मारे प्रोग्रामिंग. मैंने कहा ये मतलब एग्जाम में आप एक वर्ड चेंज कर दोगे तो उनका प्रोग्राम गलत हो जाएगा. गलत हो गया. उनको अगर आर्मस्ट्रॉन्ग आता है तो उनको ऑटोमोटिक नहीं आता है, क्योंकि वो नहीं पढ़ रखा. दैट्स अ इशू. तो मेन चीज है कि प्रोग्रामिंग पे एम्फेसिस हो सबसे ज्यादा, और प्रैक्टिकल वर्क पे हो. सो अभी मतलब जैसे आपने बताया कि प्रोग्रामिंग एंड प्रैक्टिकल वर्क पे हो, बट इंस्टेड ऑफ मतलब प्रैक्टिकल वर्क्स जो कंप्यूटर्स हैं, जो मतलब कंप्यूटर लैब्स में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे है ही नहीं. पर्सनली बिल्कुल नहीं है. मैं उनकी बात भी नहीं करना चाहूंगा. जहाँ पे हैं मुझे ऐसा लगता है वो लिटरली 2000s के कंप्यूटर्स अभी तक रखे हुए हैं. लाइक 2GB रैम, मैक्सिमम 4GB रैम विद Windows 7, एंड देयर इज नो इंटरनेट इन द कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. और सिस्टम तो बहुत अच्छे होना चाहिए हर उसमें लैब में. तो मतलब आपको ऐसा कुछ लगता है कि एक आप अगर बता पाओ कि ये तो बेसिक सिस्टम रिक्वायरमेंट है, किसी भी कंप्यूटर लैब में ये होना ही चाहिए फॉर मतलब स्टूडेंट टू लर्न एंड कम से कम i5 प्रोसेसर तो हो ना. i5 प्रोसेसर एंड रैम अराउंड. रैम तो 8 आजकल चल रही है. 8GB तो 8GB इज वेरी, यू नो, रैम के प्राइसेस भी बहुत हाई हो चुके हैं AI की वजह से, बट 8GB मिनिमम चाहिए. एंड Windows 10 तो एटलीस्ट होना चाहिए. Windows 10. सो मतलब बेसिक तो ये चीज होनी चाहिए. एंड आपको ऐसा लगता है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिबेट अराउंड इंटरनेट कनेक्शन इन कंप्यूटर लैब्स. There are a lot of schools that don't provide the internet connections, but आजकल जैसे artificial intelligence and lot of the softwares are coming up in the market, the internet connection is not there in computer labs. Like 90% of the schools in India don't have the internet connection in their lab. उसका रीजन है कई बच्चे मिसयूज भी करते हैं उसको. तो एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर होना चाहिए बच्चों के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए बच्चों के लिए. मतलब इंटरनेट कनेक्शन एटलीस्ट होना चाहिए. अगर हम लोग कंपेयर करें एज अ इंडिया का जो कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चीजें चल रही हैं एज कंपेयर टू जो बाहर का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सारी चीजें चल रही हैं, लाइक US इज मेकिंग ChatGPT, Anthropic, Claude, and China is making DeepSeek and lot of the intelligence which are
coming up in the मतलब market and the world, but India is making nothing. India is making Astro Talk right now. They are making astrology famous right now. They are like living in the past. So मतलब why specifically India is not able to do that? Because we have IIT and India can do. हाँ. लेकिन उन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस तो मिले ना. जो हमारे ऊपर है, हमसे ऊपर है, वो लोग एक पाथ तो बनाए कम से कम. तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ना. उन्होंने पाथ ही नहीं बना रखा है ना. तो और कोई स्कूल अपने से ऐसे बना नहीं सकता जब तक कि सिस्टम ऊपर से ना हो. तो सिस्टम तो ऊपर से बनेगा. ओके, ये मैं आपकी बात से बहुत एग्री करता हूँ, बट अभी यहाँ पे आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो 10th पास करे, 10th में कंप्यूटर साइंस होती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, बट 10th के बाद मेनली उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट, एंड इन तीनों में कंप्यूटर नहीं प्रेजेंट है. Unless or until students want to do it other side, उसके पास मतलब ऐसा कोई ब्रेन में प्रेजेंट ही नहीं है कि ये बल्कि उल्टा जो बड़ी कोचिंग से वो ये कहते हैं कि कंप्यूटर ले लोगे तो और लोड पड़ जाएगा तुम्हारे पे. हाँ. और जाना उसी स्ट्रीम में है बच्चे को, और वो छूट जाता है बच्चे का. बहुत से छोड़ देते हैं बच्चे. So मतलब आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ सिस्टम में चेंजेस करने चाहिए? सिस्टम में चेंज करना चाहिए बिल्कुल. और जैसे कि मैं देख रहा था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, तो उनके यहाँ मतलब हम बहुत अच्छा, मतलब कंप्यूटर का सबसे अच्छा सिलेबस अगर है तो उनका है. ओके. कुछ साल पहले एक लड़की थी जिसने बायो कर रखा था, उसे मेडिकल, मतलब पेरेंट्स चाह रहे थे कि मेडिकल में जाए, बट उसकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी थी. ओके. शी हैज टेकन कंप्यूटर विद बायो. ओके. अब जब उसने वहाँ का एग्जाम दिया तो उसके पास मैथ्स नहीं थी. ओके. एंड मैथ्स इज कंपल्सरी देयर. तो मैथ्स के साथ कंप्यूटर कंपल्सरी होना चाहिए. मैथ्स के साथ कंप्यूटर कंपल्सरी होना, बिकॉज़ आई गेस मैथ हेल्प्स इन योर लर्निंग एक्टिविटीज एंड मेक योर न्यूमेरिकल मेथड्स एक सब्जेक्ट है. हाँ. उसके साथ प्रोग्रामिंग मतलब जो बनती है तो बहुत अच्छा मतलब फॉर्मूला बन जाता है उसके साथ, न्यूमेरिकल मेथड्स के साथ. I agree with you and I can relate with that student, to be honest. But as a student, I was very good in computer and math. These are the 2 subjects in my class. I was getting much higher marks like than anybody else. But still I was getting very less marks in Hindi, science and everything else combined. So do you think there are many students like that who are much better in computer science and maths, but they are not able to pursue that, I guess, in much better way? ऐसा है. ये बहुत मतलब ज़्यादा होता है. ये है, ऐसा है. मुझे सर ऐसा जानना है कि in next 5 years, what do you think will be the future of computers and AI in India? फिलहाल तो जितने भी IITs हैं वो कोलैब करके किसी के साथ कुछ ना कुछ कोर्स करवा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी मंगवाया था, मेरे पास भी है, काफी सारे सिलेबस हैं. और इवन मेरे पास भी बहुत से AI के बच्चे आ रहे हैं कोडिंग सीखने के लिए. क्योंकि मैंने तो AI नहीं किया है, मैं तो पुराना हूँ बहुत, लेकिन हाँ आइडिया तो है मेरे को. क्योंकि मेरा भाई यूरोप में एक बहुत बड़ी फर्म में काम कर रहा है, और उसको प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ाई थी और इंजीनियरिंग उसको मैंने कराई थी. उसके बाद वो यूरोप चला गया था, वहाँ सेटल हो गया है. और वो मुझे बता रहा है कि मैं पिछले 5 साल से मैंने प्रोग्रामिंग नहीं करी है, मैं सिर्फ मैनेजमेंट कर रहा हूँ. मुझे सिर्फ मैनेजमेंट करना होता है. तो इस वक्त जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ AI को मैनेज कर रहे हैं. AI को मैनेज कर रहे हैं. हाँ. एक सिलेबस ऐसा डाल देना चाहिए 11th-12th में जो AI मैनेजमेंट सिखाए. AI मैनेजमेंट सिखाए. So, आपने सिलेबस की बात करी तो मेरे को ऐसा जानना है कि who decides the syllabus for the students? मतलब there is some person who is very good with these things or like randomly? Actually मुझे जितना पता है, मतलब शॉर्ट में पता है, क्योंकि मैं किसी स्कूल में था तो वहाँ पे कुछ लोग IIT से आए थे. तो ISC का तो कुछ IITs के लोग ही सेट करते हैं कंप्यूटर का सिलेबस. ओके. सिलेबस अच्छा होता है. और NCERT मतलब CBSE उसका मुझे आइडिया नहीं है दादा, क्योंकि CBSE में पहले कंप्यूटर्स बहुत कम थी. अब इधर थोड़ा सा IP और पाइथन थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि CUET में आ रहा है वो, इस वजह से. तो अब उसका कौन डिजाइन करता है मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन हाँ इनका तो कुछ IITs के टीचर्स से इनका कोलैबोरेशन है, वही लोग डिजाइन करते हैं. ICSE. हाँ, ICSE. ओके. मुझे ऐसा लगता है It's good. It's good. For ICSE is good. But for the CBSE I don't guess it's good. उनका जो IP वाला सिलेबस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस वाला, that is not very good. ओके. उसमें कुछ है नहीं, कोडिंग कुछ नहीं है उसमें, बस सिंपल बेसिक थ्योरी लैब्स को यूज करके और कुछ बना लेना है, बस बेसिक है. बहुत बेसिक. तो सर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. फिनलैंड एंड चाइना का एजुकेशन सिस्टम, दे हैव नेल्ड इट आई गेस इन अ वे कि स्टूडेंट्स are very good in the things, and मैंने तो ऐसा सुना है कि फिनलैंड के अंदर there is no homework, nothing, then the students are doing very good. So मतलब what they have done differently and we are not able to? उनका स्कूल बहुत शॉर्ट होता है, तो जहाँ तक मुझे पता है, और वो लोग बच्चे की जो क्वालिटी होती है बस उसी पे एम्फेसिस करते हैं.
जैसे कि चाइना के तो मैंने बहुत से वीडियोस भी देखे, जैसे बच्चे को बॉक्सिंग आ रही है हाँ। तो वो बॉक्सिंग में ही उसको दिन रात प्रैक्टिस कराएंगे और उसको उसी फील्ड में लेके जाएंगे वो लोग। ये है एज कंपेयर टू इंडिया, मतलब यहाँ पर तो सभी कुछ पढ़ना पड़ता है उसको बेचारे को, सभी को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ है उसके पास, इंग्लिश भी है और वो मैथ्स भी पढ़ रहा है। जबकि उसको, जैसे मेरी बेटी है हाँ। तो अब मैं अपनी बेटी को मैथ्स पढ़ाता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि वो क्लास 8 में है तो मैं पढ़ा देता हूँ उसको, लेकिन उसको मैथ्स अच्छी नहीं लगती, ओके उसको बायो पढ़नी है। ओके तो ऐसा हो सकता है कि वो बायो पढ़े हाँ क्लास 8 से क्लास 9 से, हाँ है ना, सिर्फ बायो ही पढ़े, या उसको अच्छा लग रहा है तो बायो के साथ वो कर सकती है, बायोटेक्नोलॉजी ले सकती है, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है बच्चे के पास। तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कंप्यूटर से भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस बन सकते हैं, जैसे गेम डिजाइनर बन सकता है एंड एडिटिंग हो सकता है, नेटवर्क मैनेजर बन सकता है, नेटवर्क मैनेजर बन सकता है। बट मेरे को ऐसा लगता है कंप्यूटर मेनली लोग यूज करते हैं इंडिया के अंदर एक्सेल चलाने के लिए, बस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल चलाने के लिए, एंड व्हिच इज मेनली आई गेस यू विल एग्री ऑटोमेट हो रहा है ड्यू टू एआई। सो आई गेस इंडिया के अंदर कंप्यूटर को उस वे में रीडिजाइन करना चाहिए, बिल्कुल, जिससे पीपल कैन एबल टू figure that more career options with the computer। अब जैसे स्कूल्स में गवर्नमेंट जो है एक अच्छी लैब प्रोवाइड कर दे, उसमें टीचर्स हायर कर ले, बच्चे उसमें भी क्लास के बाद, क्लास के पहले क्लास कुछ अपना क्लास हो वहाँ पे उनका एक्स्ट्रा, उसमें वो लोग अपनी वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करें, उनकी अलग से डिग्री बनाए, गवर्नमेंट बना सकते हैं भाई। जैसे आपने ओ लेवल ए लेवल का नाम सुना होगा, तो गवर्नमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ, तो ऐसे ही जो इनके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे अच्छी लैब बनाई जा सकती है, अच्छे इंस्ट्रक्टर रखे जा सकते हैं जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका अलग सिलेबस होना चाहिए पूरा। मेरे को अभी अपने गवर्नमेंट का जब एग्जांपल लिया तो अभी हमने जितनी भी कन्वर्सेशन करी है, देयर आर अबाउट प्राइवेट स्कूल्स व्हिच एटलीस्ट हैव कंप्यूटर लैब्स, नॉट दैट ग्रेट बट दैट आर ओनली अगर मैक्सिमम 20% ऑफ द इंडिया, 20% is I am also taking the large number to be honest, 80% of the India still use the button wala Jio phone and watching the movies on that. So what do you think, because the majority of India is not able to literally see the keyboard in their life और वो साइबर कैफे पे जाके कोई चीज करा रहे हैं, so मतलब they are not able to do that much stuff. So government can do anything for those people, because मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी होता है पर उनके पास एक कंप्यूटर भी नहीं होता है। सही बात है, मेरे पास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर हैं, हमको कुछ कंप्यूटर सीखना है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए कुछ एक, जैसे मैंने बोला ना कि जैसे ये वाली जो लैब मैं बोल रहा था बनाने के लिए, इसी लैब को उनके लिए बनाया जा सकता है, मतलब पब्लिक के लिए बनाया जा सकता है। जैसे कि स्कूल टाइमिंग हो गई 8 से 2, उसके बाद 3 बजे से लेके और 6 बजे तक, और ये बच्चे भी आ सकते हैं, बाकी लोग भी आ सकते हैं देखने के लिए। तो पहले ये गवर्नमेंट थी, आई विल नॉट नेम द गवर्नमेंट, बट दैट गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव कंप्यूटर्स टू द स्टूडेंट्स व्हिच वाज आई गेस वेरी गुड थिंग फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उस जो स्कीम उन्होंने एक प्रोवाइड करी थी उससे काफी लोग कंप्यूटर फील्ड में आए एंड काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। सो डू यू थिंक कि इस तरीके का जो स्कीम्स या फिर कोई चीज है जो द पीपल हु आर वेरी गुड इन द कंप्यूटर शुड गेट वन फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब दिस गवर्नमेंट कैन डू और नॉट? हाँ, कैन हो सकता है, तो हो सकता है, ये बहुत इजीली हो सकता है, इजीली हो सकता है, बट ये गवर्नमेंट करेगी नहीं, मतलब कर नहीं रही। कर सकती है या नहीं करेगी वो तो एक उनका डिसीजन है, हम लोग क्या बोले। सर अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको मतलब सिलेबस दोबारा से लिखना है फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, सो मतलब आप किस वे में लिखना चाहोगे कि फर्स्ट क्लास से लेके इस क्लास तक ये पढ़ना चाहिए, फिर ये पढ़ना चाहिए, फिर ये पढ़ना चाहिए? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, छोटे क्लासेस में तो मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो मैथ्स पढ़ाऊंगा बच्चे को, लेकिन क्लास 5 से मैं स्टार्ट करूंगा उसकी प्रोग्रामिंग। बच्चा क्लास 5 का प्रोग्रामिंग कर लेता है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब उसको आता है तो प्रोग्रामिंग कर सकता है आराम से वो। और मैं लेके आऊंगा सबसे पहले बेसिक लाऊंगा, फिर नेक्स्ट ईयर मैं उसको सिखाना शुरू करूंगा पाइथन के साथ स्क्रैच सिखाऊंगा उसको मैं क्लास 8 तक कम से कम। ओके, एंड प्रैक्टिकल होगा ये? प्रैक्टिकल, थ्योरी वाला पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन कितने सेकंड, ये सबसे कोई फायदा नहीं बच्चे को। प्रैक्टिकल तो 8 पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, 8 तक आप उसको स्क्रैच एंड पाइथन एंड एवरीथिंग 8 तक उसको लूपिंग सब आ जाएगी। हाँ, और फिर 9-10 वो एरेज और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखेगा। अब वो 11-12 में तैयार है किसी भी लेवल की प्रोग्रामिंग करने के लिए।
और आपको मतलब आई गेस यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि 10th में आई गेस आप करियर काउंसलिंग भी एक इम्पोर्टेंट नाइन्थ, बल्कि 9th में होनी चाहिए। 9th में करियर काउंसलिंग होनी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड एट द थिंग्स बट दे डोंट इवन नो बिकॉज उनके सराउंडिंग में एक बबल बन चुका है। द पेरेंट्स आर like doctors, engineers and commerce, CA and everything. They don't know the career fields. Like they only know maximum 15 career fields, but there are like 12,000 career fields. So ऐसा मतलब कि career counseling, I guess you should add in the 9th, and that would improve them a lot. Do you think with the AI coming up in the race and every country is just taking over the AI and मतलब doing great things with it, India पीछे रह रहा है अभी उस चीज में? पीछे तो है अभी थोड़ा, मतलब थोड़ा ही पीछे आपका काफी पीछे है, मतलब काफी पीछे। अभी हमको अपनी लैब्स को अपग्रेड करना है सबसे पहले, है ना। फिर हमें इंस्ट्रक्टर चाहिए उस लेवल के कि जो हमारा करा पाए इसको, तो होना तो भी पीछे है, काफी पीछे है। तो ये एक काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट है जो करना चाहिए एंड मुझे लगता है मेनली अगर ये सिस्टम को चेंज कर पाए एंड मेन रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से कि इसको जो है आगे अपग्रेड करें, थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ फंड रिलीज करें इसके लिए अलग से, rather than doing the things which are doing government now. I really appreciate, sir, your time with it personally. Thank you. Your opinion matters a lot, to be honest. Thank you so much for doing it. So I came here with the one question. We are preparing our students for the future or the past. And after today, I have the answer. It's not teachers' fault. Our system is only broken. So in our schools, we create workers which are going to do the job. हम लोग creativity को इतना ज़्यादा proper way में explore ही नहीं करते हैं. हम लोग उनको केवल पढ़ा रहे हैं सेम चीज़ों के बारे में. जैसा हमारे सर ने बोला, हम लोगों को abacus पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोगों को उनको पढ़ानी है practical चीज़ें जो वो real life में use कर पाएं. आज की वीडियो के बाद एक तो बहुत चीज़ क्लियर हो गई है मेरे को, बिकॉज मैं अराउंड 50+ स्कूल्स के पास कॉल किया हूँ, बहुत सारे स्कूल्स के पास मैं पर्सनली गया हूँ उनसे केवल क्वेश्चन पूछने कि व्हाट्स मिसिंग इन द एजुकेशन सिस्टम, व्हाट वी कैन इम्प्रूव. बहुत सारे लोग मेरे से एग्री किए, बहुत सारे प्रिंसिपल मेरे से एग्री किए एंड बहुत सारे टीचर्स भी मेरे से एग्री किए. बट द प्रॉब्लम वॉज अथॉरिटीज़. बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जो मेरे से बात करना चाहते थे, जो इम्प्रूवमेंट्स मेरे को सजेस्ट कर रहे थे, बट ऑन कैमरा आने से बहुत ज़्यादा डर रहे थे. मैं उनका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली पूरी तरीके से समझता हूँ. सो आई रियली अप्रिशिएट द क्लासेस टू कम फॉरवर्ड and say the things which nobody else was saying. And one thing which machines can't replace is a human who think differently, who is not going on the line which is created by other people. But after this video, I have one clear vision that education system is not empowering our creativity, it's just preparing workers. I don't know what the solution look like, but I definitely know the education system needs to ask what a student good at. So if any authorities are watching this video, we need to change our education system. And if we can't change our education system instantly, these 3 things we need to implement very fast. Career counseling, practical ways to use computers, and ask the same question, what a student is good at. इस वाले वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा. And I am asking the same question again, is our education system is killing our creativity or not? So if you like this video, definitely share with your friends and family and to your teachers, because together we can create the change and prepare our students for the future.